चलो ठीक है, आ जाएंगे खुद ही। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करके आए थे कि फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने Assalamu alaikum, कॉर्पोरेशन। ma'am. Excuse me, ma'am. Assalamu यस alaikum. जी, Ma'am, please speak English as well, especially the important topics. इट्स ओके। Last time we had discussed the terms of finance, sole proprietorships, corporation, and last points of the partnerships. Let we are firstly start what is finance. In our present day economy, finance is defined as the provision of money at the time that it is required. The second point is move. What is finance? Every enterprise, big or small, needs finance to carry on its operations and to achieve its target. The third point is finance is and therefore rightly called lifeblood of an enterprise. The fourth point is clearly define the finance in true terms. First one is public finance and second one is private finance. In short terms, finance is the term of matters regarding the management, creation, and study of money and investment. Especially, it deals with the questions of study as individual company or government acquiring the money needed called capital in the company, contents and how they spend of investment at the finance. Finance, the example of the finance is the banking department handle the budget of the company and management of the banking. Investments and in short terms, the finance is the company. Without finance is not working. The initial part, the main part, the major part of the company depend on you finance. The finance is not available, then company is 0 point. The next point is the objective of finance is defined into two classes. First one is finance, second one is public. Finance is divided into 2 points. First one is public finance and second one is private finance. First, public finance. Public finance is the study of the role of the government in the economy. Public finance, the overall economic condition depend and observations and studies of the economy ups and down conditions. Ups and down condition mean to say the high level of the economy and down level of the economy. Then the private finance, it's include debts management, provision, plan, future investment, and so on. Private finance depend on you sole proprietorships, the single persons of the organizations. Profit and loss, profit only bear single person and loss is bear only single persons. Private finance is depend on you personal finance, business finance, and finance of NPOs. NPOs stand means non-profit organizations. क्लास आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के? मैम साथ क्लास साथ बोलो। उर्दू में कर दिया करें तो बाद स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि हमें इंग्लिश में फुली अंडरस्टैंड नहीं करते टॉपिक को, तो इस वजह से साथ उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करें। अच्छा ठीक है। ठीक है मैम। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी वो दाऊद बच्चा कह रहा था कि मैडम आप इनटू इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो हमसे जो है वो क्लियर कर दिया करें, क्योंकि वो डेफिनेटली वो बच्चे इनटू इंग्लिश स्पीकिंग है तो उनके लिए उर्दू को क्लियर अप करना ज्यादा टफ हो जाता है। अब जैसे आपकी क्लास में मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इनटू
उर्दू हैं तो उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग को करना मुश्किल। बेटर वे यही है कि आप लोग जो है मैं इनटू उर्दू इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया करूंगी, ठीक है? ओके मैम। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फर्स्ट हमने पॉइंट को डिस्कस किया इन आवर present day economy, finance is defined as the provision of money at time when it is required. Every enterprise, big or small, need finance to carry on its option and to achieve its target. Finance वो कहते हैं फाइनेंस क्या होता है। अब लेट्स सपोज करो आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, अगर आप लोगों के पास सोर्स ऑफ मनी ना होगा, आप लोगों के पास पैसा ना होगा, सरमाया ना होगा, तो आप बिजनेस को कैसे सेट करोगे? जब तक आपके पास फाइनेंस होगा, जब तक आप लोगों के पास सोर्स ऑफ मनी होगा, जब तक आप लोगों के पास पैसा होगा, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि अगर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है, तो आप लोगों ने एजुकेशन किस सेंस में स्टार्ट की? आप लोगों को पता है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इनका इतना हमारे पास बजट है कि हम अपने हर सेमेस्टर की फी को पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये बात सेट हो कि नहीं, हम लोग मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा आपके क्लास फेलोज होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे या आप लोगों के कोई मिलने मिलाने वाले रिलेटिव्स होंगे, मोस्टली बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम लोग जो है वो हमारे पास इतना सोर्स नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। जब भी कोई भी आप लोगों ने वर्किंग करनी है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कोई भी बिजनेस सेट करना है, विदाउट फाइनेंस या विदाउट सोर्स ऑफ मनी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। डिपेंड करता है फाइनेंस पे। फाइनेंस का वर्ड जो है वो फाइनेंशियल से रिलेट करता है और फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंस से रिलेट करता है। जब आपके पास फाइनेंस आ जाता है तो देन आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हो। विदाउट फाइनेंस जो है वो आप अपनी मैनेजमेंट को सेट नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर ले कि जैसे आप लोग सीएस के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर साइंस आप लोग कर रहे हो, आप लोग अपनी डिग्री लोगे, नेक्स्ट फर्दर जाके आप लोग जॉब्स वगैरह करोगे। जब आप अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करके जॉब्स वगैरह करना चाह रहे हो, तो फर्स्टली थिंग क्या होना चाहिए आपका, कि आपके पास इतना सोर्स होना चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करो। डिग्रीज को कंप्लीट करोगे देन आप लोग कोई वर्किंग कर सकते हो। जब तक आप लोग अपनी डिग्रीज को या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाओगे, तब तक आप फर्दर कोई स्टेप नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंस का वर्ड है। फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट, आपके पास कैपिटल होगा, पैसा होगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट तब इम्प्लीमेंटेशन होती है जब आपके पास कोई वे हो, कोई पैसा हो, कोई सोर्स ऑफ मनी हो। आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की है, आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाई है, कैपिटल लगाया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैनेजमेंट की भी जरूरत है। अगर जस्ट आप लोग अपने फाइनेंस लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, आप लोग उन चीजों को सेट करके बैठे हो, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास डिसीजंस नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सारी चीजें आप लोगों की बॉदर नहीं होंगी। जब तक आप लोगों के पास मैनेजमेंट होगी, अच्छी स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, एबिलिटीज होंगी, देन आप लोगों का फाइनेंस इंप्लीमेंट होगा। आपके फाइनेंस इंप्लीमेंटेशन की वजह से जब दोनों चीजें जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम दे देंगे। क्लास ये पॉइंट क्लास बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे ये समझ नहीं आती आप लोगों की। वैसे आप लोगों को बहुत बातें आती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? बोल क्यों नहीं रहे? यस मैम, क्लियर टॉपिक। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? एनी क्वेश्चन क्लास? नो मैम। मैम एनी क्वेश्चन क्लास? No, ma'am. The subject of finance is classified. First one is public finance and second one is private finance. पब्लिक फाइनेंस जैसे लास्ट में आप लोगों को बता के आई हूँ
कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। कि पब्लिक फाइनेंस क्या होती है? पब्लिक फाइनेंस में हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो है पब्लिक लिमिटेड फाइनेंस का क्या रोल प्ले कर रही है। लेट्स सपोज कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो अप जा रही है, डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारी इकोनॉमी अप्स एंड डाउन कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे ही हमारी अप्स कंडीशन आती है तो हम अप की तरफ मूव करने लग जाते हैं, हमारी डाउन कंडीशन आती है तो हम डाउन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। लेट्स सपोज के अभी जैसे अब आप लोगों की इकोनॉमी जो है वो चेंज हुई या आप लोगों की गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो डॉलर की प्राइस भी इंक्रीज कर गई। जैसे ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज की है तो हर चीज की प्रोडक्शन की, हर चीज की प्रोडक्ट की प्राइसेस भी इंक्रीज होने लग गई हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारी जो है वो हुकूमत जो गवर्नमेंट थी वो कुछ और थी, तब डॉलर की प्राइस इतनी नहीं थी। जैसे पीटीआई की हुकूमत आई, सबसे पहला डिसीजन क्या हुआ जी, डॉलर की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाए। डेफिनेटली हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा, हमें उसकी इकोनॉमी को इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ी। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? जिसमें हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, कंडीशंस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस मीन टू से दैट it included debts management, provision, plan future investment and so on. In short terms, private finance included in personal finance, business finance or finance of NPOs. NPOs stand for non-profits organizations. प्राइवेट फाइनेंस की हम बात करें तो प्राइवेट फाइनेंस क्या होगा? जैसे अब हम यहाँ पे बात करें कि पर्सनल फाइनेंस, अगर हम कोई बैंक्स वगैरह बना रहे हैं, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो हमारा जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक है, एक हमारा एफिलिएटेड बैंक है। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है वो सब प्राइवेट बैंक हैं। अगर बैंक ने कोई लोन देना है, कोई लोन लेना है, कोई फाइनेंसिंग करनी है, तो उसने सारे डिसीजन जो है ना वो अपने बिहाफ पे करने हैं, किसी के भी हाफ पे डिसीजंस नहीं होने। नेक्स्ट बिजनेस फाइनेंस है। डेफिनेटली अगर आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट बैंक बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हो, यूनिवर्सिटीज बना रहे हो या कॉलेजेस या कोई भी आप लोग बात कर लो कि आप इंस्टीट्यूशंस बना रहे हो, उसके ऊपर जो आप लोगों ने फाइनेंसिंग करनी है वो आप लोगों ने अपने भी हाफ पे करनी है और अपने भी हाफ पे डिसीजन करनी है कि हम लोगों ने कैसे फाइनेंसिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं, आप लोगों ने लास्ट टाइम नहीं, आप लोगों ने नहीं वो पढ़ा हुआ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनका थीम जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। उन्होंने जो वर्किंग करनी होती है, उनका वर्किंग करने का थीम ये होता है कि हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए वर्किंग करनी है। अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, कोई फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो विदाउट प्रॉफिट थीम कर रहे हैं सारा डिसीजंस, उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देंगे। क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन क्लास? मैम ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वो होती हैं जो जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारी प्राइवेट भी होती हैं और हमारी पब्लिक भी होती हैं, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट का पब्लिक भी आती है, जिसको हम लोग सेमी गवर्नमेंट का नाम देते हैं, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का नाम देते होते हैं। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? मानू नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। Next, the meaning of finance. The next slide is we discuss the literally speaking business finance activity. It is the composed of two words. First one is business and second one is finance.
Firstly, business. Any activity undertaken for the purpose of earning profit is business. Definitely, every student is aware in business activity. Business, any legal activity undertaken for the purpose of earning profit is business. The finance, we are deeply discussed. The last slides is finance. The next slide is the word business literally means a state of being busy. वो कहते हैं कि बिजनेस क्या होता है और फाइनेंस क्या होता है। जैसे हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बिजनेस क्या होगा कि जिसमें हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे, कोई ऐसा बिजनेस सेट करेंगे, कोई ऐसी हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें हमारा थीम जो है वो ये होगा कि हम लोगों ने प्रॉफिट अर्निंग करनी है। और फाइनेंस को हम पीछे भी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि फाइनेंस क्या होता है। हमारे पास सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए, देन हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को रनिंग में लेके आएंगे, अदरवाइज हमारी रनिंग जो है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। The next point is the word business literally means as the state of being busy. The next point is all creative human activity relating to the production and distribution of goods and services for satisfying human wants is known as business. Let's suppose every person's, every public या every human thinking कि हमारा ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना है, अपनी नीड्स, वांट्स और रिक्वायरमेंट्स को रखते हुए अपनी चीजों को बाय करना है। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोग मार्केट में जाते हो या आप लोग कोई भी चीज को बाय करते हो तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आप चीज को बाय करते हो ना। आप विदाउट चीजों को जो है वो डिमांड या नीड बाय नहीं कर सकते। अगर आप लोग चीजों की रिक्वायरमेंट्स जो है, जैसे हमारे न्यू ट्रेंड्स हो रहे हैं, न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, तो एवरी डे द ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू जो है वो इनोवेशंस इम्प्लीमेंटेशंस करती हैं। अगर आप लोग चीजों की रिक्वायरमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेंड तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस द implementations, organization productions daily, day to days या after 1 month या after 1 year according to customer need। अगर आप लोग जो है वो कोई चीज बाय करना चाह रहे हो, आप लोग कहते हो कि हमारे ट्रेंड्स जो है या हमारी इनोवेशन जो है, हमारी डिमांड जो है वो ये है कि हमें न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चीजें मिलें, तो डेफिनेटली बिजनेस ने या ऑर्गेनाइजेशन ने वही चीज बनानी है जिसकी वो कस्टमर्स उनसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। The next point is finance refer to the management of flow of money through an organization. It concerned with the manipulations used and control of money. डेफिनेटली आप लोगों की जो मैनेजमेंट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी होगी तो आप लोग जो है वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन फ्लो करेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट नहीं अच्छी, जस्ट आप लोगों ने फाइनेंसिंग की हुई है और विदाउट फाइनेंसिंग या विदाउट मैनेजमेंट या विदाउट प्लानिंग आप बिजनेस रनिंग कर रहे हो, तो आप लोगों का बिजनेस जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं चलता, आप लोग उसको जो है वो एक नॉर्मली कंडीशन में लेके जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर 3 अप्रोचेस ऑफ फाइनेंसिंग। फर्स्ट वन इज provision of funds to the business on more suitable base. It confuse finance to the raising of fund and to the study of institutions and instruments from where funds are raised. The second one is provision and management of cash. The third one is raising of fund and their effective utilizations. The first one is provision of funds. परवीन किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? क्लास पता है परवीन किसको कहते हो? अबू बकर कौन है? अबू बकर कौन है क्लास? क्लास अबू बकर कौन है तो स्टूडेंट ही है। कौन है अबू बकर? हुदा अहमद कौन है? यस मैम।
परवीन किसको कहते हो परवीन? Ma'am, provision means to supply or give something for use. Let's go. Clearly defining the provision of funds. For example, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. I have question for you. Provision of funds, the example and clearly define. मैम किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब फाइनेंस चाहिए होता है, तो ऐसे फंड्स प्रोवाइड करना जिससे वो बिजनेस जो है वो रनिंग में आ सके, उसकी इंक्रीज हो. ठीक है. अहमद आप बताओ बच्चे. आमना कौन है? आमना इलियास कौन है? Any persons call for Amna Ilyas? Amna Ilyas? Yes, ma'am. Amna, please explain the provision of funds to the business. मैम बिजनेस में फाइनेंस प्रोवाइड करना. अहमद आप बताओ बच्चे परवीन किसको कहते हैं? मैम लाइक दैट एक बिजनेस हम रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि हम बिजनेस को रन कर सकें और उसकी मैनेजमेंट के लिए. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अहमद. यस मैम. फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दो इसकी. दाऊद आप बताओ बच्चे. वेयर इज दाऊद? Yes, ma'am. Explain the provision of funds and the role of the organization. Excuse me, ma'am. I don't have your sound clear. The focus of the statement, provision of funds. जी मैम फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल हमने बनाया है तो उसके लिए पहली बात तो यह है कि हमें फाइनेंस होना चाहिए, तो हमें उस स्कूल को रन करने के लिए तो उसकी मैनेजमेंट के लिए टीचर्स वगैरह की भी जरूरत है. तो ये इसकी एग्जांपल ले लें. ठीक है. देखो आप स्टेटमेंट पे फोकस करो. उसने कहा provision of funds to the business on most suitable base. Let's suppose कि अगर आप लोग एक provision कर रहे हो, provision कहते हो आप लोग किसी यानी कि चीज को बनाना, किसी चीज की आप लोग रनिंग करना चाह रहे हो. जैसे अभी आपने अहमद ने एग्जांपल दी, वो एक और बच्ची बता रही थी कि मैडम हम कोई चीज बनाना चाहेंगे विदाउट फाइनेंसिंग अब बिजनेस को नहीं चला सकते. अगर नेक्स्ट उसने स्टेटमेंट में ये भी बात की ऑन मोस्ट सूटेबल बेस कि अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या हम जैसे भी स्कूल की एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं, स्कूल को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो फंड है ना वो कितना किसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट में या कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा. हमें उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की मैनेजमेंट को सेट करना होगा. अगर हम उससे अप या डाउन कंडीशन में चले जाएंगे तो इट्स मीन दैट कि द मैनेजमेंट इज द पुअर डिसीजन, द मैनेजमेंट इज द रॉन्ग डिसीजन, कि हमारी मैनेजमेंट का रॉन्ग डिसीजन हो रहा है और हम एक पुअर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट में उसने कहा है कि परवीन ऑफ मैनेजमेंट फॉर कैश. डेफिनेटली आपकी जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को गाइडलाइन देती है कि इतनी आप लोगों को कैश की जरूरत है, इतना आप लोगों ने कैश जो है वो अरेंज करके लिखना है. लेट्स सपोज द करंट एग्जांपल ऑफ यू
कि आप लोग जैसे करंट ये कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने जब एडमिशन लिया तो आप लोगों के माइंड में ये बात सेट हो गई कि अगर हम लोग एडमिशन ले रहे हैं तो हमारी पर सेमेस्टर जो हम लोगों ने फी पे करनी है वो 60,000, 70,000 या 80,000 के राउंड अबाउट करनी है। सो जितनी भी आप लोग फीसिस पे कर रहे हो, फिर आप लोगों ने ये भी एस्टिमेशन लगाया कि द ओवरऑल फी पे हम कितनी करेंगे पूरे सेमेस्टर्स में या पूरे हमारा जितना भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। इसी तरह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आप लोगों को मैनेजमेंट बताती है कि अगर आप लोगों ने कैश की सेटलमेंट करनी है तो कितने का राउंड अबाउटिंग आपके पास कैश होना चाहिए कि आप लोग इजीली अपनी कवर अप कर लो उन चीजों को। लास्ट पॉइंट उसने कहा कि राइजिंग द फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि हम लोगों ने अपने फंड्स को कैसे राइज करना है और कैसे अपनी चीजों को यूटिलाइजेशन करना है, कि हम यूटिलाइजेशन होते हैं कि कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, कैसे उनको इफेक्टिव बनाना है। लेट्स सपोज करो कि अगर हमारे पास फंड तो है, हम चीजों को यूज भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड या हम लोग इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे या हम लोगों को चीजों की अवेयरनेस नहीं है, ये चीजों को हम लोगों को गाइडलाइन नहीं करना आ रहा, तो इट्स मीन दैट द मैनेजमेंट इज नॉट वैलिड डिसीजन, द मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव, द मैनेजमेंट इज नॉट बेटर प्लानिंग, कि हमारी मैनेजमेंट एक बेटर प्लानिंग नहीं कर रही, हमारी मैनेजमेंट एक अच्छा इफेक्टिवनेस नहीं दे रही। आप भी जानते हो, सभी लोगों को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे। विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रनिंग, कि आपकी मैनेजमेंट के बगैर आपकी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रनिंग नहीं करती। इसीलिए वो कहते हैं कि मीनिंग क्या होता है फाइनेंस का, कि आप लोगों को जब भी आप किसी चीज की प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, आप किसी चीज को सेट करना चाह रहे हो, आप किसी चीज की मैनिपुलेशंस करना चाह रहे हो, यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हो, तो एवरी पार्ट या एवरी टर्म्स the must part of the finance. Without financing is not complete of the organizations. क्लियर है ये बात? एनी क्वेश्चन क्लास इन दिस स्लाइड? नो मैम। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो इस स्लाइड में? एनी क्वेश्चन क्लास? Mahnoor, move this next slide. The next slide is business finance. The business finance can further be subdivided into three categories. The first one is sole proprietor finance. Second one is partnerships. Business, and again discuss, again explain business, any activity undertaken of it is called business. Finance. Finance is the terms of matters regarding the management, creation, the study of money and investment, and especially deal with the questions of how study can individual company or government acquisitions the company needed called capital in the company context and how they spend or investment of the first point is sole proprietorships. The last lecture is discussed in sole proprietorships. A business form for which there is one owner. This single owner has unlimited liability for all debts of the firms. Let's suppose the single member of the organizations settle the overall responsibility, the overall abilities, the overall skills and knowledges implementation of the organization, and at the end of the time duration, at the end of the accounting period, at the end of the completions of the time durations, the profit and loss bear on single sole proprietorship. Let's suppose
कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन है, उसने अगर एक बिजनेस चला रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर उसने बिजनेस को चलाना है, जितना प्रॉफिट लगाना है, जितना लॉस बेयर करना है, वो सिंगल पर्सन नहीं सब कुछ एक्टिविटी करनी है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुद ही उस प्रॉफिट को जो है ना वो देखेगा, या वो खुद ही वो उसका खुद खुद से वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने इस प्रॉफिट को अब कैसे जो है वो मैनेज करना है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, उसने खुद से बेयर करना है कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। वो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो सिंगल ऑनर होता है ऑफ बिजनेस का। जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोगों को अब आपकी डिग्रीज मिलनी है, तो क्या ऐसा होना है कि आपकी डिग्री के ऊपर आपकी पूरी क्लास का नेम मेंशन होना है? ऐसा होना है? क्लास बोलो, बच्चे बोलते क्यों नहीं हो? क्या होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर फाइनेंस क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पर्सन फाइनेंस को लगाता है। उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने ओवरऑल मैनेजमेंट को देखना है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी उसने ही बेयर करना है, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप। A partnership form in which two or more individuals act as owner. In general partnership, all partners have unlimited liability for the debts of the firms. In a limited partnership, one or more partners may have limited liability. For example, the partnership firm finance the two or more peoples are combined financing and then started the business. The liabilities of the partnerships firms two persons equally. The first person's is investment and the responsibility of the business equally compared to other person. लेट्स सपोज कि एक पार्टनरशिप फर्म्स फाइनेंसिंग है जिसमें दो भी लोग जो है वो बिजनेस मिल के करना चाह रहे हैं या मिल के वो बिजनेस को कर रहे हैं। अगर एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो फुली उसका जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो भी उसने क्या है फुली पार्टिसिपेशन करनी है कि अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो मैंने इसको कैसे कवर अप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कॉर्पोरेट और कंपनी फाइनेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट वो होता है a business form legally separate from its owner. Its different features include limited liability, easily transfer of ownership, unlimited life, and an ability to raise large sum of capital. For example, a corporation is an artificial being, indivisible, intangible, and existing only in computations of the law. Being a more create of law, it's possessive only those properties which the charters of its creation upon it, either or an unconditionable to its very existence. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो है, कॉर्पोरेट वर्ड किससे निकला है पता है आप लोगों को? कॉर्पोरेट वर्ड किससे निकला है? बच्चे अब्दुल बासित कौन है? अब्दुल बासित कौन है? इकरा रहमान कौन है? इकरा रहमान कौन है? यस मैम। इकरा बताओ बच्चे, कॉर्पोरेट का वर्ड किससे स्टैंड करता है? कॉर्पोरेट सिंपल बता दो क्या होता है। आप डेली वर्डिंग में यूज भी करते हो इसको, कॉर्पोरेट को। बोलो, बोल क्यों नहीं?
नहीं पता इकरा? नो मैम। ईशा सजल कौन है? ईशा सजल कौन है? ईशा सजल कौन है? फैजान कौन है? फैजान मलिक। आप लोगों के लिए वैसे ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही है क्लास? ऐसे ही है? आप लोगों को ऑनलाइन सिस्टम का अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरे को समझ नहीं आती हाँ। मैम मैम बॉडी को कहते हैं? क्या किसको कहते हैं? इसका बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नहीं नहीं, बॉडी को क्यों कहते हैं? बॉडी ऑफ ये तो हम कंपनी नहीं, बॉडी को नहीं कहते। ये ग्रुप्स को कहते हैं। कॉर्पोरेट और कंपनी फाइनेंस वो होता है जिसमें आप ग्रुपिंग की सूरत में वर्किंग करते हो, ग्रुपिंग की सूरत में फाइनेंस लगाते हो और देन उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो, उसको कॉर्पोरेट कहते हो। कितने के कॉर्पोरेट और कंपनी फाइनेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट वो होता है जस्ट लाइक कि अगर हम लोग जैसे सपोज कर लो कि अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है या आप लोगों को कोई असाइनमेंट जो है वो अलॉट की जाती है, उसे ये कहते हैं कि आप लोगों ने ग्रुपिंग फॉर्म में जो है वो अपने टॉपिक्स को या अपने जो आप लोगों को असाइनमेंट्स जो है वो साइन की गई है उनको प्रेजेंट करना है। जब ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है, पहले क्या होता है, सिंगल पर्सन काम करता है, पार्टनरशिप यस मैम। में 2 पर्सन आ जाते हैं, 2 से मोर देन एक्सटेंड कर जाते हैं। हेलो, क्लास आवाज आ रही है? यस मैम। क्लास आवाज आ मैम जैसे भी हम बात कर रहे थे, कभी कभी कट जाती है। सॉल्व प्रोप्राइटरशिप फाइनेंस में मैंने अभी आपको बताया कि एज अ सिंगल the abilities. The partnership firm finance 2 or more person perform the abilities and source of money and implementations and maintain the business activity. Or company finance, the 2 or 3 groups are combining and then implementations, financing and हेलो, क्लास आवाज आ रही है? आ रही है? कम हो जाती। अब जैसे लास्ट वाला पॉइंट है कि कॉर्पोरेट और कंपनी फाइनेंस क्या है, कि कॉर्पोरेट में मैंने भी आपको बताया कि ग्रुपिंग फॉर्म की सूरत में आप लोग अपनी वर्किंग करते हो, अपना फाइनेंस लगाते हो और उसको इम्प्लीमेंटेशंस करते हो, उसको हम लोग कॉर्पोरेट कंपनी फाइनेंस का नाम देंगे। एनी क्वेश्चन क्लास इस साइड में? एनी क्वेश्चन क्लास? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म फाइनेंस में आप लोग 2 or more पर्सन जो है वो काम करते हैं।
और जो आप लोगों का कॉर्पोरेट और कंपनी फाइनेंस होता है उसमें ग्रुपिंग की सूरत में काम किया जाता है, और जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें ग्रुप्स नहीं बनाते आप लोग, उसमें जस्ट आप लोग ये काम करते हो कि 2 लोग काम करेंगे या 3 ग्रुप लोग काम कर लेंगे या चल लिया जाता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट होता है उसमें आप लोग जो है वो ग्रुप बना लेते हो कि आपका ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। जी क्या कह रही हो? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे अब आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती है, ये कोई आपकी, जैसे आप लोग सीएस के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो या सीएस के स्टूडेंट्स हो, ये कोई आपकी पॉलिसी तो नहीं बनाई गई, कोई कंडीशन तो नहीं रखी गई कि इसमें आप लोगों के जो है मेंबर्स जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं या 5 मेंबर फिक्स कर दिए गए हैं। ये तो आप लोगों की ड्यूरेशन या आप लोगों की सेटलमेंट या आप लोगों की जो है वो ग्रुपिंग पे डिपेंड करता है ना कि कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। अगर आप लोगों के मेंबर्स ही 10 हैं तो उसके आप लोग जो है वो कितने ग्रुप बना लोगे उसके? ठीक है, 5 ग्रुप्स बना लोगे उसमें, या आप लोग 3 को कर लोगे या 4 को कर लोगे या 5 को कर लोगे। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की कैटेगराइज पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ग्रुपिंग जो है वो किस तरह करनी है। बट ये है कि कॉर्पोरेट में आप ग्रुपिंग की सूरत में वर्किंग करते हो। डेफिनेटली वो भी उनकी जितनी वो फाइनेंसिंग करेंगे, जितनी वो अपनी स्किल्स नॉलेजेस को यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर लेट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी बेयर करना पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज या अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस उनको उतना ही लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन क्लास? और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन क्लास? मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। मैम बस कर। आयशा खान कौन है? यस मैम। मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। आयशा खान कौन है? आयशा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे? क्या बस कर दे, अभी तो कुछ बड़ा ही नहीं है, बस पहले ही कर दे। फिर वो जैसे दानिश कहता है कि एक मैथ की मैडम होती थी हमें कुछ नहीं पढ़ाती थी, दानिश ऐसे ही है। कहाँ गया है दानिश? आया है क्लास में? मैम अभी भी है। क्या कह रहे हैं? दानिश आया है सीआर क्लास में? है अहमद? मैम आया था लेकिन कहाँ गया है वो? जी जी मैम। आया है क्लास में कि नहीं आया? यस मैम आया था लेकिन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, definition of business finance. That business activity which is concerned with the acquisitions and conversions of the capital fund in meeting the financial need and overall objective of a business enterprise. The second point is business finance can be broadly defined as the activity concerned with the planning, raising, controlling, and administrating the fund used in the business. The last point is explained in the business finance deals primarily with raising, administrating, and distributing funds by privately owned business units operation in non-financial fields of industry. For example, the business activity, business financing. Business financing, the activity of the business performs the overall objective, the overall completions with the help of the financing. बिजनेस फाइनेंसिंग में आप लोग क्या करते हो कि अगर आप लोगों ने एक बिजनेस चलाना है, बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो आपकी फाइनेंसिंग होनी मस्ट होती है। लेट्स सपोज कि बिजनेस में प्लान करोगे तो फाइनेंसिंग से करोगे, बिजनेस में राइजिंग करोगे तो फाइनेंस से करोगे, बिजनेस में चीजों को कंट्रोल करोगे तो विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंसिंग। अगर आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों की लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको कहते हो, जिसमें चीजों
करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद चीजों को लीडिंग करते हो और चीजों को कंट्रोलिंग करते हो। लास्ट मैंने आप लोगों को लेक्चर में ये बात बताई थी। बताई थी ना मैंने आप लोगों को कि चीजों को जब आप लोग चीजों को देखते हो, प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, लीडिंग करते हो और उसमें आप जाके चीजों को कंट्रोल करते हो। बिजनेस फाइनेंसिंग इज सेम लाइक द एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग, देन राइजिंग, देन कंट्रोलिंग एंड लास्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग। अगर आप लोग चीजों को प्लान करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग तभी प्लानिंग कर सकते हो जब आपके पास जो है एक बेटर मैनेजमेंट होगी, एक आप लोगों के पास बेटर जो है वो कैपिटल होगा, फाइनेंस होगा, फंड्स होंगे। चीजों को राइजिंग कैसे करोगे? तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग। डेफिनेटली जब चीजों को राइजिंग कर लोगे, चीजों को बना लोगे, प्रोडक्शन कर लोगे, तो उसके अंदर कुछ ऐसी भी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अब आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोगों ने जैसे पेपर्स पर देते हो आप लोग, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया आप लोगों का, आप लोग तो के लिए तो बहुत कन्वीनियंट सिस्टम हो गया है। जब आप लोग फिजिकली पेपर्स देते थे स्टार्ट से लेकर मैम अब तक हमारा आप ये लोगों ने दुख की बात फिजिकली है, पेपर्स, क्या हो गया ये आपके लिए? बड़ी दुख की बात है ये। दुख की बात है? कैसे? हमें कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, इसीलिए तो आप लोग खुश होते हो कि पेपर्स ऑनलाइन हो गए हैं, हम लोगों का फायदा हो गया है। मैम बाद में जो हमारा खसारा होगा वो। सारा होगा, पढ़ के पेपर दिया करो ना, वो 10-12 को साथ में ना बिठा लिया करो कि ये बता देना और ये बता देना और ये बता देना, फिर पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अपनी मैम एबिलिटीज की जी, बेस पे दिया। मैम गूगल जिंदाबाद। गूगल जिंदाबाद, वाकई गूगल वाकई जिंदाबाद हो गए। अब तो आपको वाकई गूगल के नारे लगाने चाहिए। नहीं तब तो फिर वाकई भी समझ नहीं। जी बिल्कुल, वही तो बात अभी नेक्स्ट में आपसे यही बात करने लगी थी कि जब आप पेपर कर रहे होते हो ना, चाहे आपने 8-10 को भी साथ बिठाया हो ना, वो भी 8-10 आप लोगों जैसे ही होते हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही होती है कि अब इसको गूगल से सर्चिंग कैसे करनी है। हेलो, यस मैम। मैम आधी क्लास सोई हुई है हाँ रात को जाग जाग के। सोई हुई है, जो बोल रहे हैं कोई ये बात बड़े, नहीं। जब पेपर ये बड़े नीसने जब हैं सारे। पेपर आए भाग जाना है। और मैं आप लोगों को पहले ये बात से अलर्ट कर, कंसेप्चुअल पेपर देना है, ठीक है? ये जो सोए हुए हैं ना वो भी जाग जाए जरा थोड़ी देर के लिए। मैंने आप लोगों को कंसेप्चुअल पेपर देना है, फिर ना बैठ बैठ के कहना कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मैम पेपर ऑनलाइन होंगे? पता नहीं पेपर ऑनलाइन होने हैं या फिजिकल होने हैं, बट ये 80% चांसेस हैं कि आप लोगों के पेपर जो है ना वो फिजिकली होने हैं। 20% चांसेस हैं कि ऑनलाइन पेपर होंगे, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में लास्ट टाइम भी मैम कोरोना इतना खतरनाक मे हुआ भी हुआ इस है। दफा भी आप लोगों के भी पेपर जो है वो फिजिकल, अब तक कोरोना ठीक हो जाना है। मैंने दुआ मांगी थी मैम रात को चलो अच्छी बात है। कि चलो पेपर अब नेक्स्ट ऑनलाइन। स्लाइड पे क्या कह रहे हो? मैम फीसिस लेने के बाद कोरोना फिर आ जाता है। यस मैम, ये बात, यही बात मेरे दिल की बात है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कब से। मैम फीसिस लेके हमें बस बुलाते हैं हफ्ते भर ये, फिर उसके बाद हमें कहते हैं जाओ, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, खत्म।
कहाँ गई है महानूर? नेक्स्ट वाली स्लाइड बस ठीक है, इस स्लाइड की समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन क्लास? यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि प्लानिंग करते हो, राइजिंग करते हो और लास्ट पे आप लोग कंट्रोलिंग करते हो। जैसे लेट्स सपोज करो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीज़ों की प्रोडक्शन कर रही है, चीज़ों की प्रोडक्ट्स को बना रही है। डेफिनेटली जब वो चीज़ों की प्लानिंग करेगी तो चीज़ों की प्रोडक्शन होगी ना, चीज़ों को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। विदाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी स्टेप नहीं कर सकती। प्लानिंग करेगी और चीजों की राइजिंग तब होगी जब प्लानिंग प्रोसेस हो चुका होगा। फिर उसके बाद थर्ड पे उसने पॉइंट कहा है कि कंट्रोल करना। जैसे सपोज करो कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक कंपनी है, जैसे हम लोग हवावे कंपनी ले लेते हैं कि उसने एक चीज प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट का नाम उसने क्या दिया इसको कि मोबाइल फोन बनाया। जब उसने चीजों की डेफिनेटली पहले प्लानिंग की कि इसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स यूज करनी है, कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने किस तरह का कैमरेज यूज करने हैं, कितनी इसकी रैम होनी चाहिए, कितनी इसकी जीबी होनी चाहिए, क्या इसके अंदर फीचर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस इज कंप्लीट इन प्लानिंग। देन वी मूव द राइजिंग प्रोसेस। फिर उन्होंने क्या किया, चीजों को मार्केट में लेके आए। जब मार्केट में चीजों को लेके आए तो पब्लिक ने उसको यूज करना स्टार्ट किया। जब चीजों ने पब्लिक ने इसको यूज करना स्टार्ट किया तो कस्टमर्स को पता चला कि इसकी फीचर्स कौन सी हैं, कितनी इसकी जीपी है, कितनी इसकी बैटरी टाइमिंग है, कितनी देर हम लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए जो है वो एक यूजेबल प्रोसेस है, कितनी देर ये हमें बेनिफिट दे सकता है। मोस्टली मोबाइल ऐसे ही होते हैं जिनको आप लोग 1 ईयर 2 ईयर्स यूज करो तो उसके बाद आप लोग उसकी देखोगे कि उसकी जो एबिलिटीज हैं या उसकी फीचर्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। उनकी बैटरी टाइमिंग जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, मोबाइल जो है वो हेल्ड करने स्टार्ट कर जाते हैं। जब ऐसी जो चीज जो आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मार्केट में लेके आ रहे हो और कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं तो कस्टमर फिर डेफिनेटली आप लोगों को फीडबैक भी देते हैं कि अगर आप लोग ये वाली चीज बना रहे हो तो ये आपके वीक पॉइंट है, आप इसको जो है वो क्लियर अप करो या आप इसको ठीक करो, आप इसके अंदर ये फीचर्स यूज करो, अब इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करो। जब आपने कस्टमर से फीडबैक लिया तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस होगी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाई है उसके अंदर हमारे क्या क्या वीक पॉइंट है। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट अडॉप्ट किया कंट्रोलिंग प्रोसेस। उन्होंने कंट्रोलिंग की चीजों को कि ठीक है नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ऐसी कंप्लेंट्स नहीं मिलती, हम अपनी चीजों को जो है वो एक बेटर वे में लेके चलेंगे, उनके अंदर एडिटिंग करेंगे, चीजों को हम लोग जो है वो एक सॉफ्ट वे में लेके चलेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। फिर उन्होंने जो उनकी मैनेजमेंट थी उन्होंने उसके ऊपर जब फीडबैक लिया, उन चीजों को कंट्रोल किया तो डेफिनेटली किसने कंट्रोल करना है, उनकी मैनेजमेंट ने कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट इन सारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की चीजों को देखती है, उनके फंड्स को सेटल करती है, उनकी प्लानिंग्स करती है और चीजों के ऊपर उनको इम्प्लीमेंटेशन करती है। अब लास्ट वाले पॉइंट में बिजनेस फाइनेंस डील primarily with rising, administrating and distributing funds by privately on business units operations in non-financial funds of industries। वो कहते हैं कि जो आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस किसको कहते हो आप लोग? एडमिनिस्ट्रेशंस किसको कहते हो? अली रजा बताएगा। अली रजा एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होती हैं? अली रजा एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होती हैं आपकी? जवाद कासिम कौन है? निहान तारिक कौन है? निहान तारिक कौन है? तो ये आप लोगों को बोलना मना है? आप लोगों को बोलना मना है?
मैम मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट तो होती है। ये अहमद बोलते क्यों नहीं है? ये प्रोसेस ऑफ रनिंग बिजनेस और ऑर्गेनाइज अहमद ये बोलते क्यों नहीं है? सो रहे हैं ये? मैं भी आपको पता होगा कि नहीं बोलते। पता होगा। दूसरी क्लास के सीएम का नाम क्या है? फाहद मैम, मियां फाहद। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जो आप लोगों की मैनेजमेंट होती है। यहाँ पे उसने कहा कि बिजनेस फाइनेंस जो होती है वो तब राइजिंग करेगी जब तब वो जो है वो फ्लो करेगी जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, जब आपकी मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस को एक अच्छे फंड से, एक अच्छी जो है एक्टिविटी से, एक अच्छी प्लानिंग से चलाएगी, देन आप लोगों की बिजनेस फाइनेंसिंग जो है वो एक बेटर वे में चलेगी। नेक्स्ट स्लाइड करो मानो। The next slide is scope of business finance. The first one is estimating financial requirements. Second, deciding the capital structure. Third, selecting a source of finance. Fourth one is selecting a partner of investment. Proper cash invest management, implementation, proper financial controls, proper use of surplus. Estimating financial requirements. Definitely, every organization, every business, every institutions does set the finance in according to departments. Let's suppose there are 3 departments in the organization. First one is HR department, second account departments, the third is administration department. According to departments, the organizations, the management's funds is required. Deciding the capital structures, the first and initial and 0 point and the first startup of the organization set the structure capital structures. डेफिनेटली अगर आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है कि अगर हम लोग इतना कैपिटल लगा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के लिए तो हमारा क्या थीम है, हम लोग किस वजह से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले रहे हैं। द थर्ड पॉइंट इज सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेफिनेटली कि every organizations, every institutions, every company selecting the finance in according to business, in according to firms, in according to departments. The fourth one is selecting a pattern of investment. Definitely, every organization's investment according to organizations. The large level if the business is used in the heavy investment and the small business is start, then the average level, the lower level of the investment. Proper cash management. Definitely, management settle the cash partner. Cash implementations, cash requirements according to your situations, according to your management, according to your planning. कि अगर आपकी मैनेजमेंट के पास कैश जो है, अगर आपके पास कैश अवेलेबल है, आप लोगों के पास जस्ट कैश अवेलेबल है, आपको ये नहीं पता कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो बहुत ज्यादा सेविंग होती है, बहुत ज्यादा कैश अवेलेबल होता है, बट उनके पास नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज नहीं होती कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, हम इसको किस जगह पे इन्वेस्ट करें कि जहां से हम लोगों को जो है वो अर्निंग हो, हम लोगों को प्रॉफिट मिले। फिर उसके लिए आप मैनेजमेंट हायर करते हो जो आप लोगों को अवेयर करती है कि आप लोगों ने अपना जो कैश है उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करना है। The next point is implementing proper financial control. Definitely, every organizations invest in business in financing, and the last slides is discussed. First point is planning, second is rising, and third point is controlling.
मैंने जैसे भी आप लोगों को लास्ट स्लाइड में भी बताया कि फर्स्ट पे आप प्लानिंग करते हो, नेक्स्ट राइजिंग करते हो, थर्ड पे जाके आप कंट्रोलिंग करते हो। इम्प्लीमेंटेशन वो होती है जब आप लोग जिसको राइजिंग भी कहते हो, कोई चीज बनाई है, बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट पे एग्जांपल दी कि आप लोगों ने एक मोबाइल फोन बनाया, मोबाइल फोन को लेके आप मार्केट में लेके आए हो, तो जब आपने मार्केट के पब्लिक को, कस्टमर को उस चीज से अवेयर किया, उन्होंने उसको यूज किया, उसके ऊपर आप लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन की है कस्टमर्स के ऊपर, फिर जब आपको व्यूज मिले हैं तो फिर आप लोगों ने उनको कंट्रोल करना शुरू किया है कि हमने चीजों को कंट्रोल कैसे करना है। द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है पता है आप लोगों को? सरप्लस किसको कहते हो? सरप्लस किसको? मोहम्मद फरहान कौन है? मोहम्मद फरहान कौन है? क्लास अगर आप लोग बोले ना यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नहीं होने देनी। मैं पहले आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, और मैंने ये भी बात आज आप लोगों को बता दी है कि पेपर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल देना, फिर पेपर में देखते रहना कि अब हम क्या करें। आप लोग जहां आप लोगों का दिल करता है ना, आप लोग गुमसुम रह लो, तो फिर बाद में जब पेपर की बारी आनी है ना, फिर पेपर मैंने आप लोगों को अपनी मर्जी से देना है। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? नबील कौन है? नबील अहमद? नबील अहमद कौन है? वकास मुनीर कौन है? यस मैम। वकास सरप्लस का बताओ क्या होता है? मैम जो हमारे पास इनफ एक्सेस क्वांटिटी में हो। क्या एक्सेस क्वांटिटी में हो? कोई भी, मतलब हमने लास्ट सेमेस्टर में सरप्लस क्रॉप्स पढ़ा था, मतलब वो क्रॉप जो हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा अवेलेबल हो। प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस वो होता है, सरप्लस कहते हो आप प्रॉफिट को, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप लोग सपोज करो कि एक बिजनेस फाइनेंसिंग कर रही हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो, तो अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोगों को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने उसको प्रॉपर यूज कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू योर डिमांड या अकॉर्डिंग टू योर डिजायर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है एवरी ईयर, तो आप उसको जो है वो जैसे ही प्रॉफिट हो रहा है उसको जो है ना वेस्टेबल कंडीशंस पे यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने अपनी बिजनेस का स्कोप सेट करना है तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड में सेट करना है कि अगर आप लोगों को सरप्लस हो रहा है, आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने उसको कैसे यूज करना है। लेट्स सपोज कि अगर एक साल में आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में जाके आप लोगों को जो है वो लॉस ज्यादा हो जाता है, तो आप लोगों ने अपने पास इतना सरप्लस सेव करके रखना है कि लेट्स सपोज कर आपकी बिजनेस को लॉस ज्यादा कंडीशन में हो रहा है, तो आपने उसकी रिकवरी कैसे करनी है, उसको कैसे आप लोगों ने कवर अप करना है। ठीक है? Any question, class, in this slide? No ma'am. नेक्स्ट स्लाइड करो मानूर। मैम ये दाऊद क़य्यूम ने हैंड रेज किया है। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, please review the surpluses finance once again. क्या कह रहा है दाऊद? मानूर पीछे करो स्लाइड। आवाज आ रही है क्लास? Yes, ma'am. Ma'am, the last one, proper use of surpluses. A proper use of surplus mean to say that a surplus describe the amount of an assets of resources that exceed the portions that activity utilized.
A surplus can refer to the honest of the different items, including income, profit, capital, and goods. Profit, the earning of the organizations, the capital, the initial part, the investment, and goods, the product of the organizations. In budgetary contents, a surplus occurs when income earned exceeds expenses paid. For example, the surplus is the portion of the profit when the organization is the heavy earning in base of the profit situation in just like the 1 year the organization is the heavy earning in profit situation, the next year the organization is face the loss. The surplus is saved in the organization in every year. The next year is not face the not activity, the not ability, the losses. When the organization is saved the surplus and better way used and properly used in the scope of the business financing. Shukriya, ma'am. Thank you. Any question, class? No, ma'am. Manu, next slide करो. Next slide करो, Manu. Up next point is the importance of business finance. Last स्लाइड्स में आप लोग बहुत चीजें देख के आए हो, बिजनेस भी देख के आए हो, फाइनेंस भी देख के आए हो, उसके बाद उसका स्कोप भी पढ़ के आए हो, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग चीजों को डिटेल में करके आए. तो आई थिंक सो डैट कि आप लोग इसको इसके इम्पोर्टेंस को इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हो. ऐसा है कि नहीं है? क्लास ऐसा है, कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट स्लाइड करो मानून. The next slide is financial management help out the organizations. The first one is financial planning and successful promotions of an enterprise. The next one is acquisition of funds and minimum possible cost. The third point is proper use and allocation of fund. The fourth point is taking sound financial decisions. The next point is improving profitability through financial control, increasing wealth for investors and the nations. The last point is promoting and mobilizing individual and corporate saving. The first point is financial planning and successful promotion of an enterprise and clearly define the enterprise. Enterprise mean to say that the firm of the organization. Enterprise mean the firm of the organizations. Financial planning. Financial planning definitely every organization's first steps, the initial part, the planning process. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को एक सक्सेसफुल बनाना है, एक अच्छी फर्म्स बनाना है, अपनी प्रमोशंस करनी है, अपने आप को अच्छा लेके चलना है, तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ फंड एंड मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. डेफिनेटली जो हमारे जो है वो कस्टमर्स हैं या हमारे लोग हैं, हम ये कहते हैं कि चीज भी अच्छी होनी चाहिए और उसके ऊपर कॉस्ट भी कम हम लोग को बेयर करनी पड़े. तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट की चीजें बनाती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि कस्टमर्स को कॉस्ट भी कम बेयर करनी पड़े और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो. किसकी वजह से वो ऐसे करती हैं कि कस्टमर हमारी चीज से अट्रैक्ट हो, उनको अच्छी चीज लगे और हमारी चीज को वो परचेज करें. नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करती है, उनको गाइडलाइन देती है कि आपने अपने फंड्स को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है,
Let's suppose there are 2 and 3 departments of the organization. First one is accounting, HR department, accounting department, administrative department, and management department. The financial management is supporting and help out of the organization. The fund utilization, the first one is second, third, and fourth. Taking sound financial decisions. Definitely, financial management is supporting the organization in financial decisions to better way and quickly and easily and convenient part of the organizations. Improving profitability through financial control. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आप इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको बताती है, उनको गाइडलाइन देती है कि आपको कैसे प्रॉफिट की अर्निंग ज्यादा होगी और आप लोगों ने अपनी चीजों को कैसे कंट्रोल करना है. जैसे जैसे आप लोग अपनी एग्जांपल ले लो कि आप लोग अपने जब पेपर्स वगैरह देते हो या सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो, जैसे आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर लो कि अगर हम लोग एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये वाली चीजें आप लोगों ने पढ़नी है, ये वाली चीजें आपने जो है वो पेपर के लिए रेडी करनी है. अगर आप लोगों को गाइडलाइन ना दी जाए तो आप लोगों को क्या पता चलना है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, हमने इसको कैसे कवर अप करना है, हमने इसको कैसे पढ़ना है. ऐसा ही है ना. इसी तरह वो कहते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया कि जो आप लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो आपको सपोर्टिंग करती है. आप लोगों ने कैसे चीजों को जो है वो क्विकली करना है, कैसे चीजों को रनिंग में करना है और कैसे चीजों को कंट्रोल करना है. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग वेल्थ और इन्वेस्टर एंड नेशन. क्या आप वेल्थ को कहते हो पता है? कायनात कौन है? कायनात मुख्तार, कायनात कौन है? जी मैम. कायनात वेल्थ किसको कहते हो? मैम किसे? वेल्थ किसको कहते हो? दौलत को. दौलत को कहते हो. यहाँ पे हम इसको कैसे ज्यूम करेंगे कि ये हमारी पॉइंट है कि इंक्रीजिंग वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द नेशन. मैम जो इन्वेस्ट हमने करना है कि उनकी नेशन और उनकी सेहत को हमने इंक्रीज करना है, कौम और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. फहद कहाँ गया है? फहद है क्लास में? सीआर है फहद क्लास में? जीआर है ए सेक्शन की? ए सेक्शन की जीआर है यहाँ पे? यस मैम, मतलब किया. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. मैंने ये पूछा कि दूसरी क्लास का सीआर कहाँ है यहाँ पे? मैम आज शायद लीव पे है. लीव पे. और उनकी क्लास की जीआर कहाँ पे है? जीआर आई है? मैम मानुष भी जीआर है. जी मैम. जीआर है. ठीक है. मानुष निकालो स्लाइड बच्चे. वलीद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मानूर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम करती है तो उनका माइक बंद हो जाता है, इस वजह से वो आंसर नहीं दे पाती. नहीं मैम. मानूर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है. वलीद बच्ची आप ना अगेन ज्वाइन करो, फिर आपको आ जाएगी. आई थिंक सो आपकी ना इसमें प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में, इस वजह से नहीं आ रही आपको.
क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली ये है ना कि जब आप लोग की माइक जो है वो ओपन होती है तो फिर मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन हो जाती है। यू नो डैट वेरी वेल के ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो नॉर्मली है, ठीक है, और मोस्टली ऐसा होता है कि आवाज की डिस्टॉर्शन होने लग जाती है, इस वजह से वॉइस जो है ना वो क्लियर अप नहीं होती। वहां पे ज्यादा इशू होता है, यहाँ पे गूगल में तो फिर भी आवाज आ रही होती है ना। जूम पे जो है ना वो लास्ट टाइम क्लासेस उधर ही हुई है, लेकिन जूम पे ये है कि वहां पे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होने लग जाती है। आप लोगों की क्लासेस जूम पे हो रही है? यस मैम, इतना ज्यादा इशू नहीं होता। चलो जूम पे ले लेंगे नेक्स्ट टाइम, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली उस पे ना डिस्टॉर्शन ज्यादा होने लग जाती है, जब स्टूडेंट्स ज्यादा एडिटिंग करते हैं तो फिर डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम उस पे जूम पे ले लेंगे। ओके मैम। माइक्रोसॉफ्ट टीम में ये होता है, हाँ हाँ उसमें भी कर कर लेते हैं, लेकिन वहां पे ये इशू होता है कि जब आप लोगों के स्टूडेंट्स 50 से अबव हो जाते हैं ना तो वहां पे मोस्टली जो है ना वो क्लास करप्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट टाइम जूम पे ले लेंगे क्लास ना।